student. Now I am going to teach you chapter 3rd. Topic is physical significance of electric potential. Physical significance. Physical significance. Physical significance of electric potential. Physical significance of इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. तो क्या इंपॉर्टेंस है या इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं. फॉर एग्जांपल, वी बाय देयर इज रेट ऑफ पोटैटो इज 10 rupees per kg. Clear? This is the rate of potato. It means 1 kg, the cost of 1 kg potato is rupees 10. But if we have to buy 5 kg potato, then the amount will be 10 into 5. This is equal to 50. So rate is multiplied by quantity, then with what will amount we have to pay, then what amount we have to pay, this is rupees 50. So यदि हमें रेट मालूम है तो फिर 5 kg के कितने दाम देने पड़ेंगे वो हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं. इन सिमिलर वे, if suppose there is electric field, there is an electric field and this is a point at we have electric potential is V. So what is electric potential? Work done in carrying a unit positive charge. 1 कूलम चार्ज को लाने में कितना वर्क करना पड़ता है, this is equal to V. Now लेकिन यदि हम कोई चार्ज Q नोट लेकर के आए तब हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, देन वर्क इक्वल Q नोट V. तो हमें किसी पॉइंट के ऊपर यदि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मालूम है तो कोई चार्ज हम उस पॉइंट के ऊपर लेकर के जाएं और हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, वो वर्क हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं. वर्क इक्वल चार्ज इनटू पोटेंशियल. तो व्हाट इज V? V इज रेट. मीन्स कितना जो है वर्क करना पड़ेगा जूल पर कूलम. 1 कूलम चार्ज को लाने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, ये हमारे पास में रेट है. और रेट को मल्टीप्लाई कर दें इस अमाउंट से तो हमारे पास में टोटल वर्क डन आ जाएगा. तो क्या इसका जो है फिजिकल इंपॉर्टेंस बना वो हम समझ गए. तो ये सेम वैसे ही है कि जैसे पोटैटो की रेट का क्या इंपॉर्टेंस है कि हम कितना लेना चाहते हैं, उसकी कैलकुलेशन जो है कितने रुपए हमें चुकाने पड़ेंगे उसकी कैलकुलेशन हम इजी वे में कर सकते हैं. जैसे 10 मल्टीप्लाई बाई 5 kg देन देयर विल बी 50 rupees. इन सिमिलर वे 1 कूलम चार्ज को लाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ता है V, देन Q नोट चार्ज को यहां पर लाएं तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, दिस इज इक्वल टू W इक्वल Q नोट V. ये वर्क डन जो है मेजरमेंट करने में काम आता है. तो फिर हम कैसे क्या लिखें इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस, देखिए. Physical significance of electric potential. If we know the value of electric potential at a point in electric field, then
we can find out work done in carrying a charge q naught at that point by using following formula. So what is physical importance? If we know the value of electric potential at a point in electric field, then we can find out work done in carrying a charge q naught at that point by using following formula. So work done equal charge into potential. We can write here potential difference if there is potential difference between 2 points. Clear? Then formula is W equal Q naught into may V. This is physical importance of this is physical significance or physical importance of electric potential. Okay. In simple words, we can say that we can find out work done in carrying a charge in given electric field if we know electric potential at that point. Now, so this is वर्क डन. तो तुम इसे नोट कर सकते हो. नेक्स्ट बात आती है देयर इज ए यूनिट ऑफ वर्क और एनर्जी फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन. इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए उनकी एनर्जी के लिए हम एक यूनिट देते हैं जिसे हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं. तो फार्मूला क्या था हमारे पास, देखिए, वर्क इक्वल चार्ज इनटू में पोटेंशियल. सो यूनिट ऑफ वर्क जूल, चार्ज इज मेजर्ड इन कूलम and electric potential measured in volt, then we can say that coulomb into volt equal to, so 1 joule equal 1 coulomb into 1 volt. So this is mechanical unit of work or energy. This is electrical unit, coulomb volt. Now electron volt, 1 electron volt. This is unit of energy or work. So what is 1 electron volt? If an electron is accelerated through potential 1 volt, then energy of electron will be 1 electron volt, or work done on electron is said to be 1 electron volt.
Clear? The energy of electron. So it means we can write as W equal Q naught into maybe. This is work or energy. That one electron, so charge on electron 1 E into 1 volt. So this is equal to 1 electron charge in 1 charge on 1 electron is 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulomb into 1 volt. But coulomb into volt equal joule. This is equal to 1.6 into 10 raised to power minus 19 joule. So we can say that 1 electron volt energy is equal 1.6 into 10 raised to power minus 19 joule. So this is energy of microscopic particles. Microscopic particles के लिए जो है ये एनर्जी की यूनिट है. तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज यूनिट ऑफ एनर्जी. ठीक है. तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की एनर्जी जो है हम इससे मेजर कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट से. तो क्या डेफिनेशन बनी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की? इफ एन इलेक्ट्रॉन या 1 इलेक्ट्रॉन इज accelerated through potential 1 volt, then energy of electron will be 1 electron volt. So if an electron or 1 electron, we can write here as if 1 electron is accelerated through potential 1 volt, then energy of electron will be 1 electron volt. क्लियर? तो ये तो हुई एनर्जी की यूनिट की बात. नाउ we take next article. Article is electric potential from electric field. Next article है electric potential from electric field. Electric potential from electric field क्या है इस आर्टिकल में? Look here. This is a non-uniform electric field. Clear? This is non-uniform electric field. In this field, there are 2 points, A and B. Clear? 2 points. We want to carry a test positive charge Q naught from point A to B. हमें एक टेस्ट चार्ज पॉजिटिव चार्ज Q नोट जो है वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में A से और B पॉइंट तक लेकर के जाना है. ठीक. तो किसी इंस्टेंट ये कोई पॉइंट P ले लें और Q नोट चार्ज यहां है, तो फिर Q नोट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण लगने वाला जो फोर्स है, जो इलेक्ट्रिक फोर्स है Fe, दिस इज इक्वल टू Q नोट E. क्लियर? दिस इज इलेक्ट्रिक फोर्स. तो टेस्ट चार्ज Q नोट के ऊपर जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के कारण वो Q नोट E होगा. लेकिन we can assume that in this side there is a positive plate, in this side there is a negative plate, and the direction of electric field intensity remains from positive to negative. So positive charge will move along the direction of electric field intensity. So force will be in this direction, or that is electric force Fe equal Q naught E. F electric Q naught E. But हमें इस चार्ज को इस पाथ पे रखने के लिए एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक इसके अपोजिट. दिस इज F एक्सटर्नल फोर्स जो इसको काउंटर बैलेंस करेगा. तो इतना फोर्स लगा करके हम इसको यदि
मूव करवाए हैं स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dl से, ठीक है, ये कोई स्मॉल dl जो है इससे हम इसको मूव करवाएं, क्लियर। तो फिर हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो फिर एक बार से मैं रिपीट करता हूं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें पॉइंट P से, ये पॉइंट A से ये पॉइंट P यहां है, हमें किसी चार्ज Q नोट को A से B तक लेके जाना है। लेकिन जब हम ये प्रोसेस में थे तो किसी इंस्टेंट हमारे पास पॉइंट P के ऊपर जब चार्ज Q नोट था तो Q नोट पर कितना इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा था, Q नोट E। लेकिन हमने उसके ठीक काउंटर बैलेंस करने के लिए, इस पाथ में बनाए रखने के लिए कितना फोर्स अप्लाई किया, F एक्सटर्नल अप्लाई किया, और एक कितना डिस्प्लेसमेंट किया इस फोर्स के तहत, dl। तो फिर हमने कितना स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन किया, वो वर्क डन हम फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से जान सकते हैं। तो फिर यहां देखिए किस तरीके से हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड आउट कर सकते हैं ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इन figure there is a non-uniform electric field, there is a non-uniform electric field, capital A and capital B are 2 points in this field. We want to carry test positive charge Q naught from point capital A to capital B, ठीक। हम किसी टेस्ट चार्ज Q नोट को ले जाना चाहते हैं, कहां से कहां तक, A से B तक। तो फिर क्या लिखेंगे यहां पर, देखिए, if the charge Q naught is at P, if the charge Q naught is at P, then force experienced by the charge due to electric field capital E, F electric equal Q naught E, clear। If the charge Q naught is at P, then force experienced by the charge due to electric field E, F electric equal Q naught E. This is equation first. But we apply an external force F external, but this force will be opposite just to electric force, but external force Fex equal minus F electric, clear। This is applied, this force is due to electric field, this is second, then from first and by using first and second minus F electric equal minus FEL, तो we can put value ये, तो
F external, this is equal to minus Q naught E. This is equation third. ठीक, if external force produces small displacement in test charge Q naught, then work done. तो work done by F external, work done by F external dW equal F external dot dl. Clear? This is equation 4. dl vector small displacement. Clear? तो एक बार मैं फिर से इसको रिपीट कर देता हूं, आप ध्यान से देखिएगा। ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें 2 पॉइंट ए व बी हैं। यहां हम किसी चार्ज क्यू नोट को ए से बी तक ले जाना चाहते हैं, लेकिन इस प्रोसेस में जब हम जा रहे थे तो कोई पॉइंट पी लेते हैं। उस पॉइंट पी के ऊपर कितना फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, एफ इलेक्ट्रिक इक्वल क्यू नोट ई लगेगा। लेकिन इसके ठीक काउंटर बैलेंस करने के लिए एक्सटर्नल फोर्स एफ ई एक्सटर्नल लगा। लेकिन इस फोर्स से हमने इसको कितना डिस्प्लेस किया, डीएल डिस्प्लेस किया। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये एफ इलेक्ट्रिक निकालें, तो वो एफ इलेक्ट्रिक कितना हो जाएगा, क्यू नोट ई। लेकिन एफ इलेक्ट्रिक और एफ एक्सटर्नल एक दूसरे के अपोजिट है, तो फिर हम ये बात लिख सकते हैं। और एफ एक्सटर्नल को जो एफ इलेक्ट्रिक यहां पुट कर दें तो फिर एफ एक्सटर्नल की वैल्यू जो है वो ये आ गई। और इस एक्सटर्नल फोर्स से जो है हम इसको डिस्प्लेस करें डीएल, तो वर्क डन कितना होगा, दैट इज डीडब्ल्यू इक्वल एफ एक्सटर्नल डॉट डीएल। क्लियर? तो फिर कौन कौन सी इक्वेशन का यूज करें, टेल मी, बताइए दें। हम इक्वेशन फर्स्ट की वैल्यू किस में पुट कर दें, इक्वेशन 4 में पुट कर दें। तो ये हमारे पास में डीडब्ल्यू आ गया एफ एक्सटर्नल इंटू में डॉट डीएल। तो इसको आप नोट कीजिए। तो इक्वेशन 4 के बाद की बात मैं आगे यहां लिख रहा हूं। By using equation first and 4, by using equation first and 4, so what is the result, dw equal minus q naught e vector dot dl। f एक्सटर्नल की वैल्यू जो थी वो माइनस क्यू नोट ई थी, तो हमने ये पुट कर दी। तो ये हम इक्वेशन इसके अंदर पुट कर रहे हैं 3 and 4, सॉरी 3 and 4, फर्स्ट एंड 4 नहीं, 3 and 4, 3 and 4। ये इक्वेशन नंबर कितनी हो गई, 5th। लेकिन क्या हमें केवल इतना ही वर्क निकालना था क्या, सिर्फ हम डीएल तक जाएं, इतना ही वर्क चाहिए क्या, नहीं, हमें वर्क चाहिए टोटल कि हम ए पॉइंट से कहां तक जाएं, बी तक जाएं। तो फिर टोटल वर्क निकालने के लिए हमें इक्वेशन 5 का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो फिर हम ये कहें वर्क डन इन कैरिंग द टेस्ट चार्ज फ्रॉम ए टू बी, द टोटल वर्क डन मीन्स टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन total work done by integration of equation 5, by integration of equation 5, then WAB equal minus Q naught is constant, integration from A to B और E डॉट डी एल। क्लियर? दिस इज इक्वेशन 6। तो ए से बी तक जाने में कितना काम वर्क करना पड़ेगा, टोटल वर्क डन यहां लिख देता हूं फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी। तो फिर इसका इंटीग्रेशन करोगे फ्रॉम ए टू बी, देन यू कैन राइट डब्ल्यू ए बी माइनस क्यू नॉट इज कांस्टेंट, दिस इज टेस्ट पॉजिटिव चार्ज,
this constant. This is uniform, non-uniform. So this will be in integration dot dl from a to b. तो आप यहां तक नोट करते जाइए. इक्वेशन टू इक्वेशन चलिए. इक्वेशन 4 वहां होगी, ये फिर 3 एंड 4 से 5 आ गई, और 5 से फिर हम इंटीग्रेशन कर देंगे 5 का, तो ये आ जाएगी 6. चलिए नेक्स्ट बात पर हम आते हैं. बाय डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, बाय definition of potential difference. Can you tell me? VAB equal to WAB upon Q naught. This is electric potential difference definition. This is 7. This is 7. So what will be results for VAB? Look here, this is WAB. So by using equation 6 and 7, by using equation 6 and 7, you can write VAB. What is value of WAB? Minus Q naught integration from A to B E dot dl divided by Q naught. क्लियर? WAB की वैल्यू रख दी, अपॉन में Q naught. Q naught is cancel out. So VAB equal minus integration from A to B E dot dl. This is potential difference. This is electric field. This is relation between electric field and electric potential difference. But suppose the point A is situated at infinity. In this situation, if यहां मैं कंडीशन लगाता हूं, this is equation 8. If the point A is situated at infinity, then क्या होगा? यहां लिख रहा हूं, ये आपने नोट कर लिया होगा. देखिए मैं इसको रिमूव कर रहा हूं. Then potential at B, then potential at B, VB equal V infinity B equal minus from infinity to B और E वेक्टर डॉट dl वेक्टर. मैंने यहां इंफिनिटी पुट कर दिया. इसका मतलब इंफिनिटी से और बी पॉइंट तक ले जाने के लिए कितना वर्णन करना पड़ेगा? तो ये डेफिनेशन तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की थी. तो फिर ये आपके पास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ गया कहां पर? बी पर. बट इन जनरल फॉर्म यदि कोई भी पॉइंट हो, there can be any point. For this, potential is V minus from infinity to the position of a point is B. But यहाँ integration with respect to distance. So we can write position for point is R and E dot dr. In general way, the formula of potential can be written as, and this is relation between electric potential and electric field. So आपका क्या था टाइटल? देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किससे आ गया? फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड से. तो दिस इज इक्वेशन 9 और दिस इज इक्वेशन 10.
नोट कीजिए। ठीक है, तो ये आर्टिकल आपका कंप्लीट हुआ कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड आउट करेंगे। थैंक यू।